السلام علیکم. ہاں جناب خیریت ہے. اللہ کرم ہے. کیا حالات ہیں؟ یہ حال چال ہے. حضرت جنید بھائی بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے. کیا فالو کیا حال ہے؟ حضرت کیسے انہیں گلفام کیا نام ان کا گلفام رضا قادری ارے سن لیا آپ نے؟ سب سن لیا. کیسے انہیں دھوکہ دے دیا آپ نے مفتی گلفام رضا رامپوری کو ہاں. دھوکہ وہ خود ہی کھا گئے. آپ آپ تو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے. ہاں پہلے تو غلط ترجمہ بتا دیا فاضل بریلوی کا، بعد میں صحیح بتا رہے ہیں. نہیں آپ نے جو طاہر القادری کے بارے میں ڈاکٹر طاہر القادری کے بارے کی بات کر رہا ہوں میں. ہاں ہاں کیسے اس مسئلے میں کیسے دھوکہ دے گئے آپ؟ وہ تو سنی مانا ہے نا انہوں نے. تو سنی وہ ہے ہی نہیں ڈاکٹر طاہر القادری. وہ تو مراد آباد والے کو سمجھتے ہوں گے جہاں تک ہے. وہ تو گلفام رضا صاحب نے تو سنی مانا ہے. وہ سنی ہے ہی نہیں. تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری ہے جس نے کتاب لکھی فرقہ پرستی کا خاتمہ ہاں ہے، جس نے کہا سیاہ رابجی قادیانی سب میں تعبیری اختلاف ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. قادیانیوں کے بارے میں نہیں کہا ہوگا. نہیں سارے اس نے فرقے گنائے. سیاہ تک قادیانیوں کو تو انہوں نے کافر قرار دلوایا تھا. سیاہ کو بھی گنایا انہوں نے. چلو قادیانیوں نے کہا سیاہ کو تو گنایا. سیاہ دیوبندی وہابی سب کو گنانے کے بعد بولا کہ اس میں تعبیری اختلاف ہے. اور دوسری چیز یہ ایک جگہ وہ لکھتا ہے کہ ہماری مسجدیں عیسائی بھائیوں کے لیے کھلی ہوئی ہیں، انہیں بلیورس مانتا ہے، وہ مسلمان مانتا ہے. بلیورس کے دو معنی ہیں. نہیں مسلمان ایک تو مانتا ہے. ایمان والا مومن، اور ایک بلیور وہ ہوتا ہے جو کتاب آسمانی کتاب پر یقین رکھتا ہو. نہیں ایمان والا ہی مانتا. اس نے یہ کہا ہماری مسجدیں عیسائی بھائیوں کے لیے کھلی ہوئی ہے، وہ اپنے طور پہ آ کے عبادت کر سکتے ہیں. وہ اسلام سے قریب ہے نا. عیسائی ان سے آج کہاں ان ہے کی وجہ سے اسلام سے قریب ہیں، تو اس لیے کہا ہوگا کہ کم سے کم یہاں آئیں گے. آج کے ہے ہی نہیں. وہ تو کھلا کافر ہے، جو اسے مسلمان مانے گا وہ بھی. اب تو ان کی بھی آئے گئی. کون کی؟ مولانا گلفام صاحب ہیں، ان پہ بھی دیکھیے علماء کسنی کسیں گے. اچھا اور کیا انہوں نے اچھی خاصی گڑبڑ کر دی بات کرتے کرتے ہے نا. اور عبید اللہ خان اعظمی جو ہے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ اس نے خمینی کو نائب پیغمبر کہا. اس نے خمینی کو نائب پیغمبر کہا. اب بتاؤ کتنے کافر ہو گئے صاحب. ہو جاؤ وہ بھی کافر ہے. خمینی تو ارے بڑے بڑے مسئلے ہیں صاحب، بہت مسئلے ہیں. اور رہی بات مولانا ظہیر الدین جو ہے سنی دعوت اسلامی کے سردار کا استاد ہے. نہیں وہ آوازیں آئیں گی ادھر. سنی دعوت اسلامی کے سردار کا استاد مولانا ثاقب نوری کا استاد ہے. مولانا ثاقب نوری کا جو استاد ہے مولانا ظہیر الدین، دنیا کے سب سے بڑے مفسر ہیں آج کی تاریخ میں. مفتی مولانا قاری رحیل صاحب دنیا کے سب سے بڑے مفسر ہیں. سنو قاری مولانا ظہیر الدین اس کا نام ہے. ہاں تو علماء کونسل میں بیٹھے ہیں تو کیسے کافر ہو جائیں گے کیا؟ نہیں اس نے یہ کہا مسلک قبر میں نہیں پوچھا جائے گا. ہاں تو مسئلہ کے حالات نہیں پوچھا جائے گا. یہ مطلب تھا مسئلہ کے شافعی نہیں پوچھا جائے گا نہ حنبلی. صحیح بات ہے. اس نے یہ کہا مسلک قبر میں نہیں پوچھا گا. ہاں تو صحیح تو بات ہے. شافعی مالکی حنبلی یہ مسلک کا سوال تھوڑی ہوگا قبر میں. مسلک ہے کیا؟ مسلک یہی تو ہے ما کنتا تقول کیا رجل. ارے یہ تو لوگوں نے ایک یہی تو مسلک ہے. منطقیانہ دلیل دیکھتے ہیں. یہی تو مسلک ہے. اور سرکار تاج شریعہ فرماتے ہیں یہ تو وہ تو نظیر میاں صاحب خود وہاں پر بیٹھے تھے، جامع ازہر مصر میں پڑھتے تھے، دیوبندی نظری سب پڑھتے تھے، وہیں وہ پڑھتے تھے. تاج شریعہ کیا فرماتے ہیں یہ تو ان سے بھی آگے نکل گئے ساتھ بیٹھ کے. ارے مسلک شافعی مالکی حنبلی یہ مراد تھے ان کے کہنے سے. یہ نہیں تھا مراد تھے تو اسے ظاہر کرتے نا. جیسے ارے تو مطلب دنیا میں یہی تو مشہور ہے، شافعی مالکی حنبلی حنفی. مسلکی نہیں وہ مذہب ہے. وہ مسلک یہی مراد تھے. مسلک کہتے تھے مسلک شافعی مالکی حنبلی احمد امام حنیف. اور پتہ حضرت یہ تینوں کے تینوں پہ حکم ہے. اور کوئی بھی مائی کا لال ہو جو ان کا حمایتی ہو وہ سامنے آ کے انہیں مسلمان ثابت کر دے. کون کو تینوں کون؟ مولانا ظہیر الدین اور ڈاکٹر طاہر القادری اور عبید اللہ خان اعظمی اور الیاس قادری.
इलियास कादरी में अभी कोई हुक्म नहीं लगा। हम तो उलमा जो हुक्म जामे नहीं लगाएंगे, मुरादाबाद से कुफ्र का फतवा लगा है, नहीं, हम ईद क्यों ना मनाए, रमजान शरीफ के बाद ईद क्यों ना मनाए। नहीं ये हुक्म लिखा था उसने फैजान सुन्नत में कि जब चार कोई महीने को सुले मुल्क कुल्ली बोलता है। जालिम के चंगल से आजाद होता है तो खुशी मनाता है, ईद मनाता है, तो हम ईद क्यों ना मनाए। सुले कुल्लियों का मदरसा है। जामे नहीं मियाँ, हाँ सुले अरे, कुल्ली तो उसमें वो ये क्या नाम है जो, अरे सब थोड़ी सुले कुल्ली यार, फालतू अरे की ये बात कर कौन रहे सा है जो, अरे वो कहा ना हैदराबाद का, हैं। फालतू की बात क्यों कर रहे हो? हैदराबाद का मौलाना। अहमद नक्शबंदी। हाँ वो भी तो सुले कुल्ली है, माई से तो पढ़े हो। तो जामे नहीं मियाँ तो मुरादाबाद में है, हाँ वही। सुला कुल्ली है। हाँ बरेली शरीफ से बाइक आटे उस मदरसे का। जामे नहीं मियाँ का। हाँ जामिया नूर जैसा छपती है। अच्छा, हाँ अब तो तहकीक भी तो अब जैसे वो मदरसा है जो सबसे बड़ा अहले सुन्नत का मदरसा कहलाता है, वो कौन सा है? अशरफिया, अशरफिया। मदरसा अशरफिया है। उसके मौलाना निजामुद्दीन साहब थे, हाँ, उन्होंने आला हजरत से ज्यादा तहकीक कर दी। अरे ये भी गए काम से हैं। नहीं पहले नहीं, तहकीक आला हजरत से ज्यादा कर दी। चलती हुई ट्रेन में फर्ज नमाज को जायज कर दिया। बताओ ये कुछ भी जायज कर रहे हैं क्या, इस बात के मुहक्किक बने हैं, कुछ भी जायज कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि अब हम तो जो जैसे बड़े हैं, जो बड़ों के जरिए जो किताबों में आई है, और सरकार ताशरिया क्या फरमाते हैं, जो लोग असहाबे तमीज में से नहीं है वो लोग ये करें कि वो अपने बड़ों का इत्तबा करें। अच्छा एक बात बताओ, जो देवबंदी दुनिया में मशहूर हो, जैसे कोटा में एक शाही मावा सेंटर देवबंदी हैं, मेवात के रहने वाले हैं, सब जानते हैं उनको, काफी लोग जानते हैं, देवबंदी मशहूर हैं। तो उनसे एक अजहरी मियां के मुरीद ने चंदा लिया, कैलेंडर छपवा, उनका एडवर्टाइज भी किया, शाही मावा सेंटर गुमानपुरा कोटा। तो जो अजहरी मियां का मुरीद जानबूझ के देवबंदी से चंदा ले और कैलेंडर में उनका नाम छापे, क्या हुक्म होगा। देखो देवबंदी उस दिन भी मुफ्ती गुलफाम साहब ने आपको बताया, देवबंदी होते हैं दो तरीके। नहीं वो तो आलिम है, जानकार है, आलिम है, सब कुछ जानते हैं। नहीं, देवबंदी होते हैं दो तरीके। वो अवाम के आदमी अलग हैं, ये तो आलिम है, वो जानते हैं देवबंदी अकीदे को। आलिम है, वो तो आलिम है, आलिम बने। तो जान करके लेना ये गलत है। नहीं क्या गलत होगा, अजहरी मियां का मुरीद है साजिद अड़ाम इदरीस। हाँ तो गलती होगा। अब ये तो हुक्म तो उलमा लगाएंगे, हम थोड़ी लगाएंगे। नहीं उसने चंदा लिया बाकायदा उनसे। हाँ तो चंदा लिया, ये गलत किया फिर। अब अहमद पटेल को आप जानते हो, गुजरात वाले कांग्रेस के नेता थे। क्या पता उन्होंने तौबा कर ली हो। अरे कांग्रेस के जो नेता थे ना अहमद पटेल, हाँ, तो क्या पता उनके तौबा लिए कर, कोटा में दुआ हुई है, कुरान खानी हुई है मरने के बाद। क्या पता तौबा कर ली हो। आप तो उसमें जो असरफ अली थानवी की तौबा को भी मानते हो। अब क्या करें बताओ साहब, बड़ा उलझन का मसला। क्या पता उन्होंने तौबा कर ली हो। आप तो उनमें को आप तो तीसरी तरफ को ले जाते हो हजरत। अरे हम तो मुफ्ती आजम राजस्थान को मानते हैं, हजरत मौलाना मुफ्ती अशफाक हुसैन नईमी। आपका तो मौक़िफ़ ही अलग है। अरे हम तो ये अब्दुल सत्तार को हम नहीं मानते, घाट गेट वाला है ना जो अब्दुल सत्तार, मौलवी अब्दुल सत्तार जो घाट गेट पे इमाम है, इसको हम नहीं मानते। क्यों, इनमें क्या कमी है हजरत? अरे सुलाकुल्ली टाइप आदमी है, ऐसे थोड़ी होता है कोई। तो सुलाकुल्ली तो आप भी हो। वो ज्यादा सुलाकुल्ली होगा। नहीं आप तो इतने बड़े सुलाकुल्ली हो, जिन्होंने कुफ्र किया उन्हीं को काफिर नहीं मानते आप। अब वो अब्दुल सत्तार जो है, नहीं, एक तो होता बंद सुलाकुल्ली, आप तो खुले सुलाकुल्ली है। मौलवी अब्दुल सत्तार रज़वी तो है, लेकिन वो सुलाकुल्लियत का मामला है। सुलाकुल्लियत कहते कैसे है? सुलाकुल्लियत इसे कहते जो इल्म रखने के बाद बहावी, देवबंदी, सिया, रावजी, कादियानी सबको। अब देखो अमृतपुरी में एक मस्जिद है, वहाँ मौलाना वली साहब नमाज पढ़ाते हैं, उसमें तबलीग जमात वाले किताब पढ़ते हैं। हाँ, वली मोहम्मद शेरी। हाँ वली मोहम्मद शेरी साहब जो वहाँ पढ़ाते हैं, तो उनमें क्या कमी है हजरत? वो तो मैं तबलीग जमात वाले उनकी मस्जिद में किताब पढ़ते हैं असर के बाद, मैं खुद देखा, मैं खुद वहाँ पर मेरी तकरीर हुई है। अरे तो ऐसे तो तबलीग जमात वाले जने कहाँ इन्होंने कब्जा, यहाँ ईदगाह में जो मस्जिद थी, हाँ मस्जिद गौसिया, हाँ इस पे कब्जा कर लिया इन्होंने। अरे ये तो नई बात बताई आज आपने। ओहो तो अब से थोड़ी कब्जा कर लिया, कब्जा करे हुए कितना टाइम हो गया इरफान में? 15 साल हो गए इन्हें कब्जा करे हुए। अरे बड़ा अजीब मसला है, बहुत अजीब मसला। जबकि हम नमाज पढ़ने जाते तो सुन्नी आलिम साहब से बहुत टक्कर की तकरीर करते थे पहले। मगर हुआ क्या, मैंने तो सुना जो है, मुझे पक्का पता नहीं है। नहीं ये बात नहीं, जिसने वो जगह दी थी मस्जिद के लिए, हाँ वही उस पार्टी में चला गया। और देवबंदी में चला गया ना।
रिश्तेदार वगैरह थे। हाँ, तो मैंने ऐसा सुना है, मुझे पक्का पता नहीं है। ईदगाह के पास में गौसिया मस्जिद। हाँ, केस अब भी चल रहा है हजरत उस पे। हाँ, लेकिन उनका इमाम उन्हीं का है, जमात वालों का। तो इमाम क्यों नहीं हो? इमाम तो उन्हीं का है। और जो 15 साल थे उनका इमाम पहले सुन्नी इमाम थे। और बड़ा अजीब मसला हो रहा है जयपुर में, इन्होंने देवबंदियत बहुत हो गई साहब। इन्होंने धीरे, अरे देवबंदी जयपुर में है ही ज्यादा। अब कट्टर जयपुर सुन्नी बनाओ कम से कम लोगों को, बहुत कट्टर बनाओ। जयपुर में सुन्नी है ही ज्यादा। हाँ, मतलब सुन्नी तो ज्यादा है जयपुर में, मगर जैसे देवबंदियों की मस्जिदें ज्यादा है। अरे ये बड़ा चक्कर हो गया। मेरा हिसाब, मेरा जो गणित कहता है 365 या 360 मस्जिदें हैं हाँ जयपुर के अंदर, हाँ हाँ। जिसमें से 300 मस्जिदें देवबंदी इमाम है। पूरे ये अजीब मसला आपने बताया, बहुत जबरदस्त। ये क्या कर रहे हैं फिर ये मौलवी लोग, घाट गेट वाले जो रजिया चला रहे हैं? और ये मौलवी लोग खुल के रद्द करते नहीं है सब। अब आप तो अब ये खिचड़ी है ना। काजी इकराम है, एहतराम है जो आमिर में इमाम है, ये भी कुछ खास नहीं है ना। मौलवी लोग खुल के रद्द नहीं करते। एक करबला की मस्जिद है जहाँ मौलाना जावेद साहब है, हाँ हाँ हाँ, वो करते हैं। वो खुल के रद्द करते हैं। वो मौलाना जावेद साहब शाह की, मौलवी एहतराम साहब जो है, ये कोई खास नहीं है। ये खुल के रद्द नहीं करते। इनका लड़का तो मैंने अभी क्या नाम, जिस पे 12वीं शरीफ पे कारी एहतराम का लड़का, हाँ तो वो नाज शरीफ पढ़ रहे थे। हाँ। तो नाज शरीफ तो अच्छी पढ़ रहे थे, मगर तर्ज गाने की थी। अरे रोकना चाहिए, गाने की तर्ज में पढ़ना मना है। हराम है गाने की तर्ज में, नाजायज और हराम है। अरे उसका ध्यान उधर ही जाएगा, गाने की तरफ ही आएगा। वो गाना मिलो न तुम तो हम घबराएं। अरे अल्लाह हिफाजत। उस गाने की तर्ज मैंने हमारी काफी कई तकरीरें हुई है जयपुर में। मुझे नाज शरीफ के बोल याद नहीं रहे ना, मैं तुम्हें बताता, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जयपुर के इधर हमारी कई तकरीरें हो चुकी। अमृतपुरी में मस्जिद में हमारे हर जलसे में जाते हैं। पहाड़ सुन्नी पहाड़गंज में हुई, रिफत साहब के घर पे हुई 3। रिफत साहब के घर पे हुई होगी। हाँ, अभी मौलाना ततीर अहमद साहब आए। आज जयपुर का एक भी जलसा छोड़ता नहीं हूँ मैं। अच्छा, ततीर साहब आए थे, कैसी तकरीर? मौलाना ततीर अहमद साहब कई बार आ चुके। हाँ, लेकिन जयपुर का माहौल अभी सुलझा नहीं है। मैंने सही मुफ्ती शमशाद साहब को बुला लिया जयपुर वालों से, है ना, मगर वो राजी नहीं हुए। कौन से शमशाद साहब? घोसी वाले? हाँ, हजरत में रहने वाला बरेली शरीफ का ही हूँ। कौन से महल गए हो? खास बरेली शरीफ का नहीं, बरेली शरीफ से आगे है कस्बा फरीदपुर। अरे मशहूर है तो कस्बा फरीदपुर तो। और फरीदपुर से गंगाई खादर में 11 किलोमीटर गांव है बेरा पड़ेरा। हाँ हाँ हाँ, वहां के रहने वाला हूँ मैं। हाँ, ये तिलहर के पास में है फरीदपुर। तिलहर से पहले है फरीदपुर, काफी पहले। हाँ, तिलहर से पहले। मैं एक बार नमाज तो पढ़ी होगी शायद मैंने, बहुत पहले, ध्यान नहीं है। वहाँ पर एक मशहूर है, वो हकीम मशहूर है, सकलीन मियां साहब के मुरीद हैं वो वाले। यहाँ रहता हूँ मैं 30 साल से हजरत। वो नूरी रजा, एक वो टेंट हाउस वाले भी तो है वहाँ, नूरी रजा। हाँ, जानते हो? मैं ये कह रहा हूँ, मैं जयपुर में 30 साल हो गए मुझे, पूरी 30। हाँ, मशहूर। अच्छा, जयपुर में 30 साल से रह रहा हूँ? 30 साल से रह रहे हैं। और ये बहुत लंबा टाइम हो गया आपको। हाँ। अब तो आप जलसे कराओ और जो है कि काबिल आलिमों को बुलाओ जो इस्लाह करें उनकी। बुलाते ही नहीं है। मैंने एक बार कह दिया बांस की पुलिया जलसा करा दो। काजी को मत बुलाना। अहमद नक्शबंदी भी वहाबी ऐसे ही मत बुलाना। हैदराबाद वाला अहमद नक्शबंदी वहाबी है। अमीरुल कादरी साहब तो बच गए झपट से। कैसे? बीच में फतवा लग नहीं गया सिर पे। वो लग रहा है, लेकिन फिर भी लोग बुलाना है। कैसे गमार लोग हैं साहब। मुहद्दिस कबीर ने फतवा दिया है उसके खिलाफ, मुहद्दिस कबीर जाल मुस्तफा साहब ने, मगर बच गए झपट से। अरे अब इलियास काजी पर भी कुफर का फतवा है, लेकिन लोग मान ही नहीं रहे साहब। इसने अपने बाल को बाल मुबारक के बटवाया, लब्बे की अफ्तार के नारे लगवाए। इस बात के लिए जिस दिन बरेली शरीफ से हुक्म आएगा हजरत, हाँ, सराखों में मानेंगे। फतवा लगवा साहब, इसने अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल कहलवाया, और इसको लोग मीठा इलियास नहीं कहते, इलियास को कहते प्यारे बप्पा जान कहते हैं। ये बात हकीकत कह रहे हो आप, इसने मीठा रसूल कहा है, ये तो कोई झूठ थोड़ी है। बहुत बड़ी गुस्ताखी है, बहुत बड़ी गुस्ताखी है, बहुत गुस्ताखी है। आला हजरत ने कहा है मुंह में घुल जाता है शहद नायाब।
जब मैं या रसूलुल्लाह आपका नाम लेता हूँ, अल्लाह ने ज़ात रसूल को मीठा नहीं कहा है, नाम रसूल को मीठा ये कहा है कि नाम रसूल लेता हूँ तो मेरा मुंह शहद नायाब की तरह हो जाता है। इसने ज़ात रसूल को मीठा कह के अल्लाह के रसूल की अजमत का मजाक बनाया है। जो न भूला हम गरीबों को रजा, हाँ, याद उनकी अपनी आदत कीजिए, गैर में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसम। देव के बंदों से हमको क्या गरज। हाँ, ये सब बहुत बड़ी अल्लाह ताला करम फरमाए। इलियास काजी ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया था। नहीं बैठे ये हेलो, मसरूफ है आप तो इलियास काजी के ऊपर कुफ्र का फतवा लगवाना जरूरी है। ये इदरीस कोटा वाला उसकी अदलिया का मुरीद बताता है, लेकिन कौम को धोखा दे रहा है। आप कोटा वाले इदरीस है ना, नहीं आप इफ्तिताह करो बरेली शरीफ को। अरे मगर लोग माने तो सही साहब, इसने अल्लाह के रसूल की अजमत का कैसा मजाक बनाया। तो आप सारी कमियां जो हमें बता रहे हो, ये कमियां लिख के इफ्तिताह बरेली शरीफ को करो। अब फिजान सुन्नत में लिखा सब सच्चाई इतने के लाडी के कब्रिस्तान जितने लोग हैं सबकी बख्शिश हो गई, और जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हो रहा है उसकी बख्शिश नहीं। कितनी बड़ी तौहीन कर रहा था। सब हवाले लिख के इफ्तिताह बरेली शरीफ को करो। अब तारिक मसूद को अगर देखना है तो इलियास काजी को भी देखो, वही का वही मामला इलियास काजी का है दूसरी तरह से। कादियानी तारिक मसूद इलियास ये सब एक ही कैटेगरी के समझ लो, थैली के चट्टे बट्टे हैं। पैसा बांट के काम कर रहा है, 50,000 रुपए देता है एक मुबल्लिग। कौन? ये इलियास काजी 50,000 रुपए एक मुबल्लिग को दे रहा है। पानी मंगवा लेना आधा गिलास। किसको देता है 50,000 रुपए? दलालों को देता है, इसके मुबल्लिगों को। किस बात के लिए? अरे जो उसका काम करते हैं। हाँ, नहीं माइक नहीं वैसी। अच्छा, 50,000 रुपए देता है। हाँ, तो आपको कितने दिए देवबंदियों ने? हमें तो कहाँ दिए साहब। आपको कितने दिए? आप तो नई बात करते हो हजरत। देखो अख्तर रजा खां साहब अजहरी मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह जो थे, वो जब तक थे ना, जब तक ये इसकी दाल निकल, उस जमाने में अगर अजहरी मियां और होते ना तो 1-2 साल तो इलियास काजी का तो जमात का खात्मा हो जाता। पता था ना एक ही बार में चना जोर गर्म हो जाएगा। अरे साहब क्या किया जाए, वो तो बस हमारे पीर मुर्शिद थे, हम उन्हीं से मुरीद है। अरे साहब अब उनके खानदान में कोई नहीं बचा। अभी क्यों नहीं? अभी तो अपने नायब को सच्चे नायब को हुजूर अजद मियां को रजा खां साहब थे, बाकी और तो आज इस लायक अजद मियां को छोड़ गए। अभी भी बरेली में वही तम है। अब ये जामे अजहर जाना बंद करवाओ, वहाँ सब सुलह कुल्ली है। जामे अजहर को जाना बंद करवाए? हाँ, ताकि सब सुलह कुल्ली है और सुलह कुल्लियों में ही पढ़ाई करते। ये तो आप उलमा से बात करो ना। आपने जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी को जो सुन्नी कहा, तो उसे सुन्नी साबित करने के लिए तैयार हो आप? गुलफाम रजा रामपुरी नहीं, आपने जो सुन्नी कहलवाया उनसे हजरत से कहलवा दिया धोखे में, तो आप उसे सुन्नी साबित करने के लिए तैयार हो? इंशाअल्लाह आप कल बात कर लेना जरा, मैं अभी थोड़ा नाज शरीफ सुनाऊंगा। ठीक है? ठीक। यहाँ पर लोग बैठ गए। ठीक।